project he has got for rupees 50,000 Saudi riyal, and another project he has got of rupees of Saudi riyal 2 million, in fact, and he worked as co-project investigator. He was awarded with excellence in teaching award by the same university, that is King Abdulaziz University, Jeddah. Besides teaching and research, he has a rich administrative experience. Currently, he is the coordinator of IGNU Center at Ali Muslim University. He is actively involved in various developmental work of the university in various capacities. He has served as a chairperson, as I mentioned just now, of the Department of Computer Science, and he is the SWAM coordinator, IGNU Study Center, convener of University Website Committee, convener of Digital Monitoring Cell, member CIQA, CDOEMU, and member of various high-powered committees constituted by the Honorable Vice Chancellor of EMU. He has immensely contributed in ICT infrastructure development of the university, and of course at King Abdulaziz University, Jeddah. So if you see, I mean, a long list of Professor Asim Zafar, so teaching, publication, research, extension, and outreach activities. Besides all these hectic schedules, Asim Bhai is so kind to me that whenever I request him for a session, he honors my request. So there is one topic, that is e-governance, and I thought that no one be else suitable as Asim Bhai himself. So I requested, and he gave his nod. So he will be talking on this topic, e-governance. So we are running short of time. His complete CV is available on the web page of the Department of Computer Science, AMU Aligarh. So if you want to know something more about him, definitely you can know. At this juncture of time, with this short introduction, I'm handing over the session to Asim Bhai. So Asim sir, it's over to you. Thank you, Saeed Bhai. Thank you very much for your kind words. Saeed Bhai has been very generous in introducing his guest, basically, and so he did this time as well. Saeed Bhai, I would like to make a small correction that I have completed my tenure as chairmanship on 18th of January. So now Professor Aman Faridi is now the chairperson of these departments. So thank you very much, sir. And thank you, participants. And a very good evening to all of you, or good afternoon, I think. What is there? It is good afternoon. It is 2 o'clock. So we will be discussing with you in this session about e-governance. Anybody can confirm me whether I'm audible to all of you, please? Sir, yes, sir. You are audible and your slides are visible, sir. Okay, thank you. They are moving as well. Yeah. So the topic which we have decided to discuss with you in the next 1.5 hour session is that we'll be see what is e-governance, how we can define e-governance, and what is the role of technology in good governance. So that we will see. Apart from that, we will see service delivery models of e-governance, and we will discuss 1 or 2 success stories, that is the case studies. One case study we will be discussing with you, that is Passport Seva. Another is healthcare, another is tax returns. So I'll see how does the time permit. Accordingly, we will discuss with you. And after that, we will come on or move on to e-governance in universities, and what is the NEP 2020 mandate regarding e-governance. After that, we will see what is the present status of e-governance and Indian universities. Again, it is a case study, the result of a case study. So we will discuss with you so that we can have an overall idea of the implementation of e-governance systems in Indian universities. After that, if anybody wants to implement e-governance system in his or her university, what are the various steps and what kind of precautions or what kind of measures they should take while implementing e-governance system in their university, that we will discuss. After that, if the time permits, we will see some success stories of e-governance in India, and then we will see e-governance best practices, and once if you have implemented e-governance, how we can further make it more scalable, that is e-governance scalability, we will discuss. So before coming to that, first of all, we'll see this slide, what is governance. So you can see in the definition, 2 things are there. First, we will see what is government. So government is nothing but a set of a structure, rules, roles, system, and a group of people for governing a democratic country. So government is not a name of a single entity. It is a collection of various components, basically. And what are these components? A set of structures, certain rules are there, certain roles are there,
Somebody, say for example, somebody may be the prime minister, somebody may be the minister, somebody may be the state minister, somebody may be the IS officer, secretary, under secretary. So different roles are there and different systems are there. And a group of people taken together who are involved in governing a democratic setup is known as the government. And what is governance? So governance is practices to facilitate the process of development and exercised through both formal and informal institution. So what are the practices which we follow? What are the processes which we follow? So that is known as governance. Whenever we talk about governance, basically three things comes in our mind. Number one, how the government works, means way the government works is also known as the governance. Next, how do we share information with various stakeholders? Whenever we are talking about governance, whatever information we are sharing, in case of our university, say for example, who are the stakeholders? So say for example, the university is publicizing some information. So who are the beneficiary of all these information? The students, the teachers, the parents, the alumni. They are known as stakeholders. So I mean to say, governance also includes sharing of information to various stakeholders. And apart from that, there is service delivery model. How do we provide these services? Number one, way the government works, kaise kaam karta hai. Another thing is ASEAN. Taken together, all the things are known as the governance. Whenever we are talking about e-governance, jahan bhi e lag jata hai, means we are making use of technology in making the whole process of governance more efficient and more transparent. That is the thing. जो governance का definition था वो वैसा ही रहेगा. Whenever we are applying technology to the governance process, it makes the whole process more efficient and transparent, so that timely delivery of services may be ensured to all the stakeholders. Overall, it improves the work efficiency and it promotes democratic values. So whenever we are talking about e-governance, what are the components? First of all, information and communication technology is there. We use ICT or technology, you can say, to improve the efficiency, productivity, and transparency. So by doing so, what happens basically, whenever you are applying ICT to the governance process, it enhances the efficiency. It makes the whole system more transparent. It further enhances the productivity of the system. It enhances the reach of the system. So you can reach more and more people by applying technology. It makes sharing of information easier, and it provides several ways to deliver your services, to deliver your information or services to the stakeholder. And overall, it is meant for welfare of the society. So here, if we will combine all these things, you can see how do we perceive e-governance. It is application of ICT to the process of government functioning. मैंने आपसे बताया कि क्या है governance process में ICT का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, then it will be known as e-governance. It depicts the utilization of technology to ease the operation and disbursement of government information. तो मैंने बताया जो भी जो governance process है ना, उसमें आसानियां पैदा कर देता है. It makes the whole process more efficient and it makes the disbursement of government information more easier. Overall, अगर आप देखेंगे तो the purpose of all these things is that it is to bring about simple, moral, accountable, responsive, and transparent governance. In short, we can call it SMART. S for simple, M for moral, A for accountable, R for responsive, and transparent. So कहने का मतलब ये है कि here गवर्नेंस बहुत पुराना प्रोसेस है. हम लोग गवर्न कर रहे हैं, आज से नहीं, जमाने से गवर्न कर रहे हैं. लेकिन अगर आप फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नेंस और फॉर मेकिंग द गवर्नेंस प्रोसेस मोर इफिशिएंट, अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हम देखेंगे कि द होल प्रोसेस बिकम्स मोर सिंपलर, आसान हो जाता है. मॉरलिटी उसमें आ जाती है. मॉरलिटी का मतलब है कि चांसेस ऑफ करप्शन गेट्स रिड्यूस्ड ओवर देयर एंड द होल सिस्टम बिकम्स मोर अकाउंटेबल. रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है
and the whole system becomes more transparent. कैसे होता है? We will see all these things by taking an example over here. अब सर फॉर्मल डेफिनेशन अगर देखना चाहेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस इज सिंपली डिफाइंड एज यूजिंग आईसीटी सॉल्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द रीच and quality of government service delivery to the citizen, or it is being increasingly viewed as enabler and facilitator of good governance. So technology is an enabler basically and facilitator for good governance. अगर आप governance process में technology का इस्तेमाल करते हैं तो the whole process becomes more efficient. In short, you can say that the aim of e-governance is to improve the quality, cost. अच्छा, cost effective भी हो जाता है. Whenever we make the use of technology in the process, the whole process becomes more economical, you can say. So this is cost effective as well. It enhances the accessibility of the system, and further it enhances the speed of delivering government information and services to various stakeholders. Or another thing is that another aim of implementing e-governance may be to make the government more accountable by increasing the opportunity for citizen participation in the governance process. This is also important. By doing so, or by making use of technology, the citizens may directly be involved in the governance process. इसको आगे चल के फिर देखते हैं सर कि कैसे है. The whole thing which we have discussed over here कि good e-governance as an enabler and facilitator of good governance, है ना. होता क्या, देखिए गवर्नेंस प्रोसेस है, गवर्नेंस में भी गुड गवर्नेंस और मे बी बैड गवर्नेंस. हम लोग देखते हैं बैड गवर्नेंस अगर है तो इफ वी मेक यूज ऑफ ई गवर्नेंस, सो बाय मेकिंग यूज ऑफ ई गवर्नेंस वी अचीव गुड गवर्नेंस. और अगर गुड गवर्नेंस है तो फर्दर उसको इनहांस करना है, सो बाय मेकिंग यूज ऑफ ई गवर्नेंस वी कैन फर्दर इनहांस द क्वालिटी ऑफ गुड गवर्नेंस. सो गवर्नेंस ought to be aligned towards good governance, that is happiness for all. We were talking about service delivery models. So say for example, the purpose of any government is to provide certain information or certain services to their stakeholders. So several stakeholders are there. In case of government, हमने आपको अभी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था कि who are the stakeholders of the university. Students may be the stakeholder, teachers are the stakeholder, alumni are the stakeholder, parents are the stakeholder, the whole governing body is the stakeholder. तो ये सब stakeholders है सर. In case of government, हम अगर government के केस में बात करें तो who are the stakeholders? Its citizens are the stakeholder, the business people, the industrialists are the stakeholder, the employees of the government or the government employees may be the stakeholders. So these are the stakeholders. Then the purpose of governance is to deliver certain services or information to various stakeholders. So agar government is providing certain services or information to their citizen, then it will be known as G2C. G2C means government is providing certain services to the customer. इसके लिए एक अलग मॉडल होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं सर्विस डिलीवरी मॉडल. Say for example, government is providing certain services to the citizen कि फलाना स्कीम है, आप जितने भी स्कीम्स के बारे में जानकारियां होती हैं ये होती है ना, so that you can participate on that schemes. Government time to time अपने citizens के लिए various scheme का announcement करती रहती है, उसमें by filling certain pro forma you can participate in that scheme or we can become member of that scheme. तो इस तरह के मॉडल को हम लोग जहां पर गवर्नमेंट और सिटीजन्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर हम लोग कहते हैं G2C मॉडल. Sometime the government is interacting with the industrialist or the businessman, or in simple terms you can call it business, then it will be known as G2B service model. Just say for example, if anybody wants to start a company, anybody interested in starting an industry, so for that first of all he or she will have to take the permission from the government, or he will have to apply to the government so that he can get the clearance or license to start that business. So that is known as, so here what the business entity is interacting with the government के साथ interact कर रहा है to get the license, to get the permission to start a business. Then this kind of interaction is known as G2B. तो एक अलग मॉडल है सर्विस डिलीवरी मॉडल. यहाँ पर government is providing certain services to the business. Sometime the government is talking to government, G2G model. In case of, I'm just giving an example, in case of
मेकिंग द पासपोर्ट, सभी लोग वाकिफ होंगे पासपोर्ट जब बनाते हैं आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अप्लाई टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अच्छा, अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्या करती है, पुलिस इंक्वायरी के लिए दूसरे डिपार्टमेंट ऑफिस से, जो कि आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उससे क्लियरेंस लेती है कि आदमी का पास्ट कैसा रहा है, वेदर सम पुलिस कंप्लेन इज देयर और पुलिस केसेस आर देयर अगेंस्ट हिम और नॉट, और ही इज क्लियर। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो ऑफिसेस, एक ऑफिस जो है विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, अनदर ऑफिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल, मिनिस्ट्री ऑफ internal affair you can call it, or interior ministry, whatever you may call it. So they are collaborating with each other. तो यहाँ पर दो गवर्नमेंट के ऑफिस आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, then this kind of transaction is known as G2G model. All comes under the e-governance. So there are various service delivery models of e-governance. Another thing is that government is providing certain services to their employee. मान लीजिए गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को कुछ पेंशन दे रही है, कुछ पेमेंट दे रही है, कुछ कर रही है, कोई फैसिलिटीज दे रही है, तो दिस डिलीवरी मॉडल इज नोन एज G2E मॉडल. सो दीज आर सेवरल delivery models. I mean to say, what happens in governance, the government provides certain kind of information or services to various stakeholders. अब कैसे करता है, अलग अलग स्टेकहोल्डर हो सकते हैं, सिटीजन को दे रहा है तो G2C कहलाएगा, अगर बिजनेस को दे रहा है then it will be G2B, if government to government transactions is taking place then it will be G2G, and if government is providing certain information or services to their employee then it will be called as G2E. अब थोड़ा सा इतना जानने के बाद जब बैकग्राउंड हमारे पास हो गया कि गवर्नेंस क्या है और कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसमें, तो कुछ सक्सेस स्टोरी देखते हैं कि गवर्नेंस तो पहले भी था, हमने बताया गवर्नमेंट पहले भी थी, टेक्नोलॉजी के आने से पहले 100 साल पहले भी गवर्नमेंट हुआ करता था किसी फॉर्म में, अब गवर्नेंस वो भी कर रही थी, लेकिन आफ्टर कमिंग और आफ्टर द इन्वेंट ऑफ आईसीटी हमने कैसे गवर्नेंस प्रोसेस को ज्यादा इफिशिएंट बनाया, कैसे टेक्नोलॉजी को एज एन इनेबलर यूज किया, ये हम लोग देखना चाहते हैं। अगर तो एक हम एग्जांपल आपसे लेते हैं, हम लोग ये पासपोर्ट सेवा, तो सभी लोग जानते होंगे, इसीलिए हम लोग एक, देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज, हम लोग एक की बात यहाँ पर करेंगे सर। पासपोर्ट सेवा, पासपोर्ट सेवा में क्या होता है सर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपने सभी सिटीजन को एक सर्विस प्रोवाइड करती है कि इफ दे आर विलिंग टू गेट ए पासपोर्ट सो दैट दे कैन विजिट टू सम फॉरेन कंट्रीज, दे कैन हैव द पासपोर्ट, उसके लिए उनको अप्लाई करना पड़ता है। जी सर, जी मैं क्लास में हूँ। जी सर, तो हम लोग बात कर रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज टू देयर सिटीजन सो दैट दे कैन गेट द पासपोर्ट। ये सेवा आज से नहीं 100 साल पहले, 85 साल पहले से चल रही, जब से भारत है आजाद हुआ है तब से ये सेवा चल रही थी, मोर देन 70 ईयर से चल रही सर ये। लेकिन सभी लोग वाकिफ होंगे हम लोग में, इसके पहले जो पासपोर्ट बनाने का काम था दैट वाज ए कम्बरसम प्रोसेस। होता क्या था सर पहले, कि आपको पहले कहीं किसी ऑफिस में जाना पड़ता था, वहां से फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गेट द प्रोफार्मा। अब बहुत मुश्किल प्रोफार्मा होता था 12-14 पेज का। इफ यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, एम आई सर ऑडिबल? मैं सर, आप हमको सुन पा रहे हैं सर? एनीबॉडी कैन रिस्पॉन्ड? यस सर, यू आर ऑडिबल। हाँ सर। यस सर, यस सर। तो हम लोग बात कर रहे थे सर कि पहले पासपोर्ट बनाने का जो प्रोसेस था मुश्किल था सर, ये हम बताना चाह रहे हैं। तो पहले आप जाते थे किसी ऑफिस से, 10-12 पेज का कचहरी में या कोर्ट में कहीं से वो फॉर्म मिलता था, हम लोग उस फॉर्म को लेते थे, फिर आकर के इतना कॉम्प्लेक्स होता था कि खुद से भर भी नहीं पाते थे, आपको किसी एजेंट की सेवा उसमें लेनी पड़ती थी। तो चलिए साहब, एजेंट की सेवा ले लिया आपने, उस फॉर्म को भरा लिया, भरने के बाद 50 तरह के डॉक्यूमेंट लगते थे उसमें। डॉक्यूमेंट लगने के बाद फिर आपके जो क्षेत्र है वहां पर एक कोई डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, वहां पर जाकर के वहां एक पासपोर्ट ऑफिस होता था, उस पासपोर्ट ऑफिस में आपको जाके अपना फॉर्म जमा करना पड़ता था। फॉर दैट यू विल हैव टू ट्रेवल 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस फ्रॉम योर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कि ऑफिस कितने दूर है उतने दूर का आपको जाना पड़ता था। फिर वहां क्यू पे खड़े होइए, काउंटर पे आप खड़े हैं, आपका नंबर 1 घंटे के बाद आया, उसके बाद वहां एक क्लर्क बैठा होता है, वो आपके परफॉर्मा को चेक करता है। चेक करने के बाद बोलता है सर कि इसमें सर फलाना डॉक्यूमेंट नहीं है। पता चला 3 डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका पुलिस क्लियरेंस नहीं, 10 तरह की बातें उसने कह दी। आप फिर इसको जमा करिएगा। अच्छा, फिर अब आप लेकर के आ जाते हैं, अगेन यू कम बैक टू योर रेसिडेंस, घर आते हैं, फिर वो सारा डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, एंड अगेन यू विजिट टू दैट ऑफिस। सर देखिएगा कि टेक्नोलॉजी कैसे आपके जिंदगी को आसान करता है, सिर्फ इतनी सी बात है, ये अगर समझ गए तो ई गवर्नेंस है।
तो फिर आ गए, फिर दूसरी बार हम गए, इस बार हमारा डॉक्यूमेंट ठीक ठाक था, फॉर्चुनेटली उसने रख लिया, एक नंबर हमको दे दिया कि ठीक है साहब ये नंबर, एक रिसीट लीजिए। अब 2 महीने 3 महीने हम वेट कर रहे हैं, पता चला कि फिर उसने पुलिस क्लियरेंस के लिए भेजा, फिर पुलिस आया करती थी है ना हमारे घर पे वेरिफिकेशन के लिए, फिर उसने वेरिफिकेशन वगैरह किया, रिपोर्ट बनाया, फिर उसने रिपोर्ट भेजा। अब वो भेजा, कहने का मतलब है कि 4 महीने 5 महीने 6 महीने का टाइम इसमें हमारा लग जाता था, और कोई ट्रांसपेरेंसी विजिबिलिटी हमें नहीं होती थी कि हमारा एप्लीकेशन किस स्टेटस में है। अगर हम जानना चाहते हैं तो हम नहीं जान पाते थे, बस हमें सिर्फ वेट करना है 2 महीने 3 महीने, बस ठीक है साहब अब आप पुलिस क्लियरेंस के लिए गया है, बैठे रहिए आप, वेट करते रहिए। खैर आ गया, तो खैर 3 महीने 4 महीने के बाद हमको मेरे घर पे फिर बाई पोस्ट जो डिलीवर हो जाता था। सो दिस वाज द प्रोसेस, ओल्ड प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब देखिए टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ, हमने क्या किया, अब ये पासपोर्ट सेवा केंद्र, आपको कुछ नहीं करना है सर, किसी भी पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाना है, वहां पर जाना, एक परफॉर्मा आता है, वहां पर परफॉर्मा भर देना है, और आप तो वो भी नहीं, आप तो इंटरनेट सेवा है, आप घर से भी ये काम कर सकते हैं। हमने परफॉर्मा को भर दिया, सबमिट कर दिया विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, क्या डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, लगा दिया, सबमिट कर दिया। तो घर में बैठे बैठे आपने अपना परफॉर्मा सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट करेंगे आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल गया। द मोमेंट यू गेट द ट्रैकिंग नंबर यू कैन ट्रैक योर एप्लीकेशन कि हमारा एप्लीकेशन अभी किस स्टेज में है। 2 दिन के बाद देखा कि अच्छा सर हमारा एप्लीकेशन चला गया पुलिस केंद्र में, तो पुलिस केंद्र में चला गया, वेरी गुड। वहां से देखिए 2 दिन के अंदर आपके पास पुलिस की इंक्वायरी आ गई, पुलिस ने इंक्वायरी लिया, फटाफट उसने सिस्टम में अपडेट कर दिया आपकी पुलिस, आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, हाँ पुलिस इंक्वायरी सबमिटेड, आपके पास लिख कर क्या रहा कि योर पासपोर्ट विल बी डिलीवर्ड विद इन 10 days। आई मीन टू से द होल प्रोसेस बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट बढ़ गया सर, उसकी इफिशियंसी बढ़ गई। जो काम पहले 4 महीने 6 महीने में हो रहा था, अब 10 दिन 15 दिन में हो जाता है वो काम। और जो मेहनत हमें लग रहा था, बार बार ट्रेवल करना पड़ रहा था, पासपोर्ट ऑफिस जाना है, ये जाना है, इन सब चीजों से आपकी छुटकारा मिल जाती है। बहुत हुआ तो एक आध मरतबा इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया, आप इंटरव्यू के लिए, वो भी टाइम लेकर के आपको जाना है, इंटरव्यू के लिए आप टाइम लेकर के गए, काम हो। सो द होल प्रोसेस बिकम्स मोर इजियर, मोर इफिशिएंट एंड मोर ट्रांसपेरेंट बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कैसे संभव हुआ सर? विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल किया, यहां से बैठे बैठे हम अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। देखिए जमा करने का मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है सर, कि फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भी मिल गया, फॉर्म यहीं से फिल कर सकते हैं, यहीं से सबमिट कर सकते हैं, यू कैन सबमिट योर डॉक्यूमेंट एज वेल, है ना। और आपको एक नंबर भी मिल रहा है वहां से, ट्रांजेक्शन नंबर भी मिल गया, है ना। और ट्रांजेक्शन नंबर जब मिल गया, या जिसको हम लोग ट्रैकिंग नंबर कहते हैं, वो ट्रैकिंग नंबर भी मिल गया, आप यू कैन कीप ट्रैकिंग योर डॉक्यूमेंट की कहां है, किस स्टेज में है, and finally you get your passport within 15 days or within 1 month time depending on that. So the whole process becomes more efficient. इसी को सर ई गवर्नेंस कहते हैं। तो गवर्नेंस पहले भी था, पहले भी पासपोर्ट मिल रहा था लोगों को, लेकिन विद द हेल्प गंगा, डॉक्टर गंगा कमाल, माइक्रोफोन इज अनम्यूटेड, प्लीज म्यूट, यस थैंक यू। तो क्या करते हैं सर हम लोग कि बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी द होल प्रोसेस बिकम्स मोर एफिशिएंट, यही ई गवर्नेंस है सर। यहां तक अगर बातें सर क्लियर है तो हम आगे बढ़े, वरना फिर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे सर। बताइए सर यहां तक बाकी। तालिब जी सुन पा रहे हैं? डॉक्टर तालिब सिद्दीकी साहब हैं? तालिब सिद्दीकी साहब, डॉक्टर सत्येंद्र जी हैं? डॉक्टर सत्येंद्र, सर, इट इज क्लियर सर, इट इज क्लियर, है ना, क्लियर है कि गवर्नेंस तो सर पहले भी हो रहा था, है ना। यस सर। सुहार सिंह राजपूत जी हैं? सुहार सिंह राजपूत, अच्छा अख्तर साहब हैं, बड़े एक्टिव है माशाल्लाह। अख्तर साहब जी, अख्तर हुसैन साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप। अख्तर हुसैन साहब, यस सर, सही समझ में आ रहा है सर, है ना, सही क्लियर है सर। हम ये बताना चाह रहे हैं सर कि गवर्नेंस तो पहले भी था, हो तो रहा था, है ना, लेकिन विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है सर, बहुत आसान हो जाता है, बस इफिशिएंट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट, आसान हो जाता है। यही ई गवर्नेंस है सर, बस इतना अगर समझ गए हम लोग तो बाकी अब देखिएगा कि बहुत से आप एग्जांपल खुद भी दे सकते हैं। अभी सर एक हम लोग का एग्जांपल था, टैक्स रिटर्न हम लोग भरते थे सर, सभी टीचर लोग, याद होगा सर, टैक्स रिटर्न जो हम लोग भरते थे अपना, है ना। तो पहले एक सरल नाम परफॉर्म आता था, एक वकील साहब को हम लोग हायर करते थे, वो फिर भरते भराते थे टैक्स। याद है सर, सभी लोग टैक्स रिटर्न साल के आखिर में भरते थे हम लोग फाइनेंशियल एंड पे। अब वो प्रोसेस पहले मुश्किल था, अब अच्छा पता भी नहीं चलता था क्या हुआ नहीं हुआ, कितने पैसे रिटर्न हुए, कितने पैसे क्या होने, वो सब वकील साहब पे डिपेंड करता था, एक लॉयर पे। अब सर कुछ नहीं करना, आपको नेट पे जाना है, एक परफॉर्मा है, वो परफॉर्मा को भर देना है, कितना इनकम है, कितना क्या, सारी चीजें खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाती हैं, आपका इतना पैसा लौटेगा ये भी हो गया, आप उसको सबमिट कर दीजिए, विद इन 10-20 डेज आपको जो आपका रिफंड है वो भी मिल गया। तो ये
कहने का मतलब द होल प्रोसेस बिकम्स मोर इफिशिएंट, मोर ट्रांसपेरेंट, मोर इजियर फॉर द स्टेक होल्डर्स with the use of technology in governance process. So that is the whole e-governance, sir. I hope e-governance is clear to all of you, sir. तो हम अपने अलग अलग क्षेत्र में, अपने जैसे कि मैंने टैक्स रिटर्न का एग्जांपल दिया, पासपोर्ट का एग्जांपल दिया, हेल्थ केयर का एग्जांपल है, लॉट ऑफ वर्क्स ऑफ लाइफ है जहां पर हम लोग गवर्नेंस को बेटर बना सकते हैं विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बोलिए तो ठीक है सर, लेकिन हम लोग एज ए टीचर हम लोग तो बात करेंगे कि हाउ we can make the governance process of the universities more efficient and transparent. That is e-governance in universities या higher education institute में हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, हम लोग इस पर थोड़ा सा देखते हैं सर, बात करते हैं। So universities are the backbone of higher education and research. All of us know more than 80% of universities are government owned or aided by government. So introducing e-governance in university can bring transparency, can make the whole process more economical, make the process more accessible, and make the whole process more efficient in higher education if we apply or if we introduce e-governance to the universities. बोलिएगा सर ये तो ठीक है, थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे कैसे। अब जैसे देखिए, मान लीजिए सर, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सर, एक छोटा सा एग्जांपल। आप टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं सर, कौन सा टेस्ट, कोई भी टेस्ट ले लीजिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। अगर एंट्रेंस टेस्ट आप मैनुअल कराएंगे सर, या पहले मैनुअल कराते थे हम लोग, तो मैनुअल कराया, टेस्ट कॉपी जमा किया, उसको एक जगह जमा, मान ली 5 सेंटर पे हो रहे हैं, 10 सेंटर पे हो रहे हैं, 20 सेंटर पे हो रहे हैं, सभी सेंटर से कॉपियां जमा की गई। जमा करने के बाद हम लोगों ने सर क्या किया कि फिर टीचर्स को बुलवाया एक सेंटर पे, सारे टीचर जमा हुए किसी पर्टिकुलर डे पे। अब उन्होंने 10 दिन 5 दिन लिया उसको इवेल्युएट करने में, फिर मार्क्स चढ़ाया, मार्क्स चढ़ाने के बाद सर फिर हमने मेरिट लिस्ट बनाई एंड देन हमने रिजल्ट आउट किया। इतना टाइम लगता था, इतना मुश्किल काम था ये। लेकिन आजकल सर देखिए, नीट है, lakhs of students appear in the competition. गेट बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसपे lakhs of students appear, और हम उसका रिजल्ट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड निकाल सकते हैं सर। क्या होता है सर कि वो सारी चीजें इधर कंप्यूटर बेस्ड अगर टेस्ट है, एनटीए अगर करवा रही, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो कंप्यूटर बेस्ड अगर टेस्ट है तो इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रिजल्ट निकल जाएगा। अगर आपने ओएमआर के सीट में भी लिया है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग ओएमआर को इवेलुएट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, 1 दिन 2 दिन में पूरा ओएमआर इवेलुएट हो गया और रिजल्ट कैन बी डिक्लेयर विद इन अ वीक इफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग ओवर देयर। तो और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, गड़बड़ होने के भी चांसेस नहीं है। सो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, द होल प्रोसेस बिकम्स मोर इकोनॉमिकल हो जाता है सर, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो गई, द होल प्रोसेस बिकम्स मोर एफिशिएंट। तो देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इज एन इनेबलर। टेक्नोलॉजी क्या करता है, अगर किसी भी प्रोसेस में उसका इस्तेमाल करेंगे तो इट विल मेक द होल प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट, इजियर, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट। ये होता है सर। तो हम लोगों ने देखा, अच्छा हमने तो एक टेस्ट का नाम लिया आपसे, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोसेस जो हमारे यूनिवर्सिटी में होता है। हम टीचिंग एंड लर्निंग में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में अभी आपको मैंने बताया एग्जाम कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, पे फाइनेंस जो हमारे यहाँ होता है, फाइनेंस का एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसको फाइनेंस ऑफिसर हैंडल करते हैं, वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में लॉट ऑफ प्रोसेसेस आर देयर, छुट्टी कैसे ग्रांट होगा, छुट्टियां कैसे मिलेंगी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो सारी चीजें, सारी प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं सर, विद द हेल्प ऑफ उसमें अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कहने का मतलब ई गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करें, then the whole process of the university will become more transparent and easier. Do you agree with this presumption sir कि नहीं? अगर यूनिवर्सिटी में हम लोग ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करें तो पूरा प्रोसेस जो है सर एडमिनिस्ट्रेशन का आसान हो जाएगा, होगा या नहीं सर, बताइए। यस सर, जी डेफिनेटली विल बी। हाँ, तो ये आई एग्री सर। यस सर, ठीक है सर। यही सर देखिए, सारी बातें जो भी हमने आपसे करी यहीं पे लिखी हुई यहाँ पर है ना। इट मेक्स द यूनिवर्सिटी प्रोसेस इनटू यूनिफाइड सिस्टम, अनकॉम्प्लिकेटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। कहने का मतलब है कि चीजें बहुत आसान हो जाती हैं यूज करना। अच्छा ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में भी हम कर सकते हैं गवर्नेंस का इस्तेमाल, सो दैट द होल प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी बिकम्स मोर इजियर और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। एनईपी क्या कहती है सर? एनईपी कहती है, एनईपी 2020 टॉक्स अबाउट NEP 2020 talks about applying e-governance in 2 things basically, and NEP identify various related activities and mechanism to govern education in schools and higher education to achieve the goal of 21st century education.
बोलते हैं कि हाँ इस्तेमाल आप कर सकते हैं ई गवर्नेंस का। कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पहला तो इन्होंने बताया इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर्स। ये क्या कह रहा है सर? एनईपी का एक डॉक्यूमेंट है, वो कह रहा है ये आपसे कि जितने भी कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, आप देखिएगा सभी एक जैसे नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। किसी स्कूल में रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कहीं कहीं की लैब बहुत अच्छी है, कहीं की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, कहीं बिल्डिंग बहुत अच्छा है तो टीचर अच्छा नहीं है, कहीं टीचर अच्छा है तो लैब अच्छी नहीं है। तो आप देखते होंगे कि हर स्कूल के अपने मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, कहीं खामियां हैं, कुछ खूबियां हैं सर। एनईपी ये कह रहा है कि आपके क्षेत्र में अगर 5 स्कूल है मान लीजिए, तो हम ऐसा करें कि 5 होता क्या है, मान लीजिए कि एक स्कूल बहुत अच्छा है, तो वो सिर्फ वो वहां के बच्चे या वहां पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ उस स्कूल के रिसोर्सेज से लाभान्वित हो रहे हैं, दूसरे लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। इनका कहना यह है कि नहीं, हर स्कूल के अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं। जैसे मैंने बताया, कहीं टीचर बहुत अच्छा है तो कहीं की बिल्डिंग अच्छी नहीं है, कहीं की लैब बहुत अच्छी है तो टीचर अच्छे नहीं है, कहीं पर रिसोर्सेज और भी बहुत अच्छे हैं, आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो वहां पर कुछ दूसरी कमियां हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम लोग ये 4-5 स्कूल आपस में मिलकर क्लस्टर बना लें और हर एक दूसरे को रिसोर्सेज को शेयर करें, ताकि हर अच्छे पॉइंट से, हर अच्छी चीज से हर लड़का, दूसरे स्कूल का लड़का भी क्या हो सके, आपके अच्छे पॉइंट से, आपके स्ट्रेंथ से दूसरे स्कूल का बच्चा भी लाभान्वित हो सके। बोलिए सर ये कैसे बोल रहे हैं? मैं ऐसा कह रहा हूं कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है, वहां पे लैब बहुत अच्छी है, टीचर बहुत अच्छे नहीं है, चलिए ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा है कि लैब अच्छी नहीं है, टीचर बहुत एक्सपर्ट है। तो अब देखिए दोनों जगह के बच्चे जो है सो यहाँ पर ऑन द लूजिंग साइड है। एक जगह लैब होते हुए भी वहां टीचर अच्छे नहीं होने की वजह से लैब की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही उनको, दूसरी जगह टीचर तो बहुत एक्सपीरियंस है लेकिन लैब की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तब भी लैब की फैसिलिटी यहाँ नहीं मिल पा रही यहाँ के लड़कों को। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को शेयर करें कि भाई ऐसा है कि यहाँ का टीचर लैब वहां करा देगा, एक दिन वहां के बच्चे जहाँ लैब नहीं है वहां जाकर के लैब कर लेंगे, एक दिन वहां के बच्चे इनसे पढ़ लेंगे। अब कहने का मतलब इन चीजों को शेयर करें। तो शेयर कैसे करेंगे हम? ये क्लस्टर जो आप बनाएंगे, या 5-6 स्कूल जो आपस में मिलकर के क्लस्टर बना रहे हैं ताकि अपने अपने स्ट्रेंथ्स को शेयर कर सकें, कैसे करेंगे? उसके लिए जरूरत पड़ेगी सर आपको टेक्नोलॉजी की। तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन शेयर आवर रिसोर्सेज विद other schools or other colleges, so that the student of that school may also be benefited from the strengths of our or strengths of a good school or like that. So that is the meaning of school complexes or cluster. दूसरी चीज है सर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में कैसे करेंगे सर? तो हायर एजुकेशन में मैं आपको बताया कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एकेडमिक एक्टिविटीज को आप कर सकते हैं, एकेडमिक प्रोसेस को, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को, एग्जामिनेशन प्रोसेस को, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लाइब्रेरी को, हॉस्टल फैसिलिटीज को। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच कैन बी और वेयर द टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू मेक द होल गवर्नेंस प्रोसेस मोर ईजियर। हम आसानी से बना सकते हैं। फाइनेंसेज में यूज कर सकते हैं, एफओ के यहाँ फाइनेंस ऑफिस में यूज कर सकते हैं, अगर रेगुलेटरी बॉडी बहुत सारे हैं वहां पर यूज कर सकते हैं। तो एनईपी ने इन 2 जगहों को आइडेंटिफाई किया है कि कैसे आप ई गवर्नेंस का इस्तेमाल स्कूल में या हायर एजुकेशन में कर सकते हैं। ठीक है, ये तो चलिए कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं सर कि व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया। कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने से पहले अच्छा होता है कि हम लोग चल के जरा देखें जहां पर जो चीजें इंप्लीमेंट की हुई हैं वहां परफॉर्मेंस कैसा है, वहां काम कैसे हो रहा है, पहले उन चीजों को समझें। समझने के बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि अपनी यूनिवर्सिटी में हम क्या करें सर, उसको इंप्लीमेंट करें। तो देखिए सर, देखते हैं हम लोग। तो एक केस स्टडी है जो मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, जल्दी जल्दी देखिएगा। whether universities have got well defined policy for e-governance। देखिए सर, जब भी आप ई गवर्नेंस कहीं पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, या जो गवर्निंग बॉडी है ऑफ दैट यूनिवर्सिटी और कॉलेज, उनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, उनको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि यस वी वांट टू इंप्लीमेंट ई गवर्नेंस प्रोसेस इन अवर यूनिवर्सिटी इन दिस वे। वे का मतलब है एक ही साथ नहीं हो सकता। पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन में करेंगे, फिर फाइनेंस में करेंगे, फिर एग्जामिनेशन में करेंगे, फिर टीचिंग लर्निंग में करेंगे, जो भी ऑर्डर आप बनाते हैं। सो देयर शुड बी ए क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। और फिर उसी पॉलिसी के तहत, क्या देखिए आदमी बदलता रहता है, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन आपके पास अगर वेल ड्राफ्टेड पॉलिसी है, और मान लीजिए कि एक सरकार में, एक रिजीम में, या एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में पॉलिसी 2 आइटम, पॉलिसी नंबर 1 और पॉलिसी नंबर 2 इंप्लीमेंट हुआ,
तो तीसरा सरकार कोई भी आए, अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट है तो देखेगा अच्छा पॉलिसी 1 इंप्लीमेंट हो चुका है, पॉलिसी 2 अब हम पॉलिसी नंबर 3 को इंप्लीमेंट करेंगे, पॉलिसी नंबर 4 को करेंगे। सो देयर मस्ट बी ए कंटिन्यूटी इन दिस वे सो दैट द होल प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड इफ यू हैव ए वेल डिफाइंड पॉलिसी। तो सबसे पहली चीज होती है कि सर की पॉलिसी होना चाहिए। लेकिन पाया क्या गया कि जितने भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं वो सब करना तो चाहते हैं, तो बिट्स एंड पीसेज में सर कर रहे हैं, पीस मील, कहने का मतलब दे आर वर्किंग ऑन द पीस मील एक्टिविटी, कहने का मतलब बिट्स एंड पीसेज में अप्लाई कर रहे हैं। कभी एग्जामिनेशन को ऑटोमेट कर दिया, कभी फाइनेंस ऑफिस को ऑटोमेट कर दिया। देयर इज नो क्लियर कट पॉलिसी। अगर क्लियर कट पॉलिसी नहीं है तो कभी कभी क्या होता है, जैसा आप प्रिंसिपल बदल गया, वाइस चांसलर बदल गए, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बदल गया, तो जब पॉलिसी है ही नहीं तो उसकी कंटिन्यूटी भी नहीं होगी, तो वहां पर ई गवर्नेंस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं होता है। फिर देखा गया सर कि वेदर यूनिवर्सिटी हैव गॉट ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जब ई गवर्नेंस या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ब्रॉडबैंड की नेटवर्क की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होना चाहिए। अगर पता चला गांव में आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं और गांव में पता चला कि 10 घंटे बिजली रहती नहीं है, 10 घंटे बिजली नहीं रहने का मतलब है कि अगर आपके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं है तो फिर 10 घंटे आप पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो फिर गवर्नेंस ई गवर्नेंस वहां आईसीटी फुल्ली इंप्लीमेंट वहां नहीं होगा जहां पर बिजली का इस तरह से इंटरप्शन हो। इसीलिए हमको क्या चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, यूपीएस चाहिए। ठीक है सर, आफ्टर 1 मिनट आई एम कमिंग बैक। जी पार्टिसिपेंट्स, एम आई ऑडिबल, सुन पा रहे हैं सर? कंफर्म कीजिएगा सर आप। यस सर। यस सर, यस सर। हाँ सर, हम लोग बात कर रहे थे कि सर कि यूनिवर्सिटी में अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ई गवर्नेंस तो उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या क्या हमने बात किया था सर, कि हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपके पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यूपीएस करने का मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो जाएगा। अगर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तब भी आपका सिस्टम वर्किंग होना चाहिए, उसके लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होना चाहिए, और सब कुछ है आपके पास। पता चला ट्रेंड मैन पावर ही नहीं है तब भी इंप्लीमेंट नहीं होगा सर। तो ट्रेंड यानी टेक्नोलॉजी पे ट्रेंड मैन पावर होना चाहिए जो कि टेक्नोलॉजी को हैंडल करना जानते हो। अगर ये सब सारी चीजें आपके पास हैं देन आप फिर डिसाइड करिए, पॉलिसी बनाइए और धीरे धीरे करके आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखा गया सर यहाँ कि सभी लोग करना तो चाहते हैं लेकिन इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज के पास नहीं था। बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी में देखा गया कि नहीं था। अच्छा ठीक है सर, उसके बाद देखिए सर, वेदर यूनिवर्सिटी आर डिस्क्लोजिंग ऑल नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी आएगी कैसे? ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो भी चीजें आपके पास है सब खुली हुई होनी चाहिए, खुली किताब होनी चाहिए सर आपकी जिंदगी, ताकि कोई भी आदमी कुछ भी देख सके उसमें। अब यहाँ देखा गया कि यूनिवर्सिटीज जो है या एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत से इंफॉर्मेशन को खुद पब्लिक नहीं करना चाहती है, वो चाहती है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन हम छुपा के रखेंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल ऑडिटेड अकाउंट है, ऑडिटेड अकाउंट का मतलब है कि 1 साल के आपके अकाउंट्स का ऑडिट हो चुका है, उसकी रिपोर्ट है, तो भाई उसकी रिपोर्ट आप पब्लिक कर दीजिए। लेकिन नहीं, बहुत सी यूनिवर्सिटी बोलती नहीं हम इसको पब्लिक नहीं करेंगे, कुछ ये हो जाए। कहने का मतलब आप खुद ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते हैं।
तो ये भी सर यहाँ पर है कि बहुत से केसेस में देखा गया कि कुछ इन्फॉर्मेशन तो लोग रिवील कर देते हैं, लेकिन बहुत से इन्फॉर्मेशन जो कि रिवील करना चाहिए था या कर सकते थे उसको रिवील नहीं करते हैं। बहुत से कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ठीक है, जो कॉन्फिडेंशियल है उसको कॉन्फिडेंशियल रखिए, लेकिन ऑडिटेड अकाउंट है, रिजल्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप पब्लिक कर सकते हैं, तो वैसी चीजों को पब्लिक करना चाहिए। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटी हेजिटेंट है इसको करने में। फिर क्या हुआ सर, वेदर यूनिवर्सिटी हैव ऑटोमेटेड देयर एकेडमिक फंक्शंस लाइक एडमिशन, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, इस सबको कर पाए हैं। तो हाँ, देखा गया कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने अपने एडमिशन प्रोसेस को या अटेंडेंस प्रोसेस को या एग्जामिनेशन प्रोसेस को या रिजल्ट प्रोसेसिंग वाले डिपार्टमेंट को क्या किया हुआ है सर, इन लोगों ने ऑटोमेट किया है। कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने अभी नहीं किया है। रिपोर्ट यस जी, बोलिए अशोक जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? अशोक कुमार, चलिए जी सर, आगे देखते हैं सर कि वेदर यूनिवर्सिटी हैव ऑटोमेटेड द स्टूडेंट फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी, हॉस्टल, हॉस्पिटल, क्लब, ऑडिटोरियम। तो बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं सर कि जहां पर उनकी अपनी लाइब्रेरी है, तो क्या वेदर दे हैव द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में अपने हॉस्टल्स हैं, तो क्या हॉस्टल में उन्होंने अपना ई गवर्नेंस या ऑटोमेट किया है कि नहीं उस प्रोसेस को। हॉस्पिटल्स हैं तो उसको ऑटोमेट किया है या नहीं, ऑडिटोरियम है, या बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सब चीजों को ऑटोमेट किया है या नहीं किया है। तो देखा गया कि कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने अभी नहीं किया है, कुछ लोग अभी ट्राई कर रहे हैं। इसी तरह से वेदर द यूनिवर्सिटी हैव ऑटोमेटेड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लाइक एचआर। एचआर का मतलब रिक्रूटमेंट जहां पे होता है या आपके प्रमोशंस होते हैं, ये सब वाला विभाग जो है उसको इन लोगों ने ऑटोमेट किया है कि नहीं, यहाँ गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का अप्लाई किया है या नहीं, फाइनेंस में किया है या नहीं, या वेंडर मैनेजमेंट जहां से आप खरीदते हैं चीजों को, हम लोग खरीदते हैं जेम के थ्रू आजकल खरीदते हैं, तो आप देखते होंगे कि सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है। पहले क्या होता था सर, हम लोग एनआईटी टेंडर इनवाइट करते थे, उसके अगेंस्ट में 4 लिफाफे आते थे हमारे पास, फिर लिफाफा खोलते थे, फिर बैठते थे, उसको एसेस करते थे। अब ये सब सारे काम है सर ऑटोमेटेड हो गए। जेम का नाम का एक टेंडर है, जेम में आप डाल दीजिए हम ये चीज खरीदना है, 10 आदमी ने टेंडर दे दिया, उसमें से जो लोवेस्ट है आ गया, आप उससे खरीद सकते हैं। सो द होल प्रोसेस बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट एंड इफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, आई मीन टू से। अच्छी बात है सर। तो खैर हम लोगों ने ये देखा कि सर इसमें क्या है। अच्छा, सजेशंस की अगर बात करें हम लोग कि भाई ठीक है सर, ये तो आपने देखा कि ये स्टेटस था, क्या सजेशन है, कैसे करना चाहिए। तो सजेशन ये है सर, कुछ सजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडी व्हिच हैज बीन मेड ओवर देयर, सर्टेन सजेशंस हैज बीन गिवन फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस। क्या है सर, यूनिवर्सिटी नीड टू सी ई गवर्नेंस एज ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन रेदर देन स्टॉप गैप अरेंजमेंट। मैंने बताया कि एक पॉलिसी होनी चाहिए, है ना, आपके पास एक सर पूरी पॉलिसी होनी चाहिए कि हम इस तरह से अपना काम करेंगे। ये नहीं कि बिट्स एंड पीसेज में कभी ये कर लिया, कभी इसको ऑटोमेट कर दिया, कभी लाइब्रेरी को ऑटोमेट कर दिया, वैसे पूरा असर इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो आप सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव ए वेरी गुड पॉलिसी। यूनिवर्सिटी शुड इंस्टीट्यूशनलाइज द ई गवर्नेंस बाय इंस्टॉलिंग देयर ओन सर्वर्स। हाँ, अब क्या है सर कि अगर आप ई गवर्नेंस करना चाहते हैं तो एडवाइजेबल है कि आपको अपना सर्वर होना चाहिए, आपका यानी कहने अपना हार्डवेयर, अपना सॉफ्टवेयर, अपना आदमी होना चाहिए, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या करे, प्रोसेस को ऑटोमेट कर दे। यानी आप बोलते हैं सर हम रिजल्ट प्रोसेसिंग, तो रिजल्ट प्रोसेसिंग हम जैसे करते हैं वैसे बता दीजिए, आपका प्रोग्रामर क्या करेगा उसी हिसाब से सिस्टम बना देगा, ताकि आपका रिजल्ट प्रोसेसिंग का पूरा सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा। फाइनेंस आप जैसे हैंडल करते हैं बता दीजिए कि हम फाइनेंस इस तरह से हैंडल करते हैं, तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बना देगा, एंड सो। तो देयर आर सर्टेन सजेशंस, हम लोग इसको देखेंगे सर आगे, अभी चल के आगे भी इसको देखते हैं थोड़ा सा कैसे करते हैं। अब नाउ कम्स इंप्लीमेंटिंग ई गवर्नेंस सिस्टम। अब हमने देख लिया, एक मॉडल भी देख लिया, जाकर के भी देख लिया यूनिवर्सिटी में क्या हालत है। अब हम करना चाहते हैं अपने यहाँ का मतलब अपनी यूनिवर्सिटी में, इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट ई गवर्नेंस सिस्टम, तब क्या करेंगे सर, तो कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले सर क्या करना होता है कि एक ही फेज में मत कीजिए सर, इसको इंप्लीमेंट करने का सबसे पहला तरीका होता है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग थ्रू वेबसाइट डिस्प्ले। सबसे पहले तो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाइए जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन अपने स्टेक होल्डर के साथ रिमोटली शेयर कर सकते हैं। रिमोटली का मतलब कोई भी आदमी कहीं भी बैठा हो, अपने घर में बैठा हो, अपने हॉस्टल में बैठा हो, उस स्टेक होल्डर तक आपका इंफॉर्मेशन पहुंच रहा हो। तो सबसे अच्छा तरीका सर है कि वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी ने क्या बनाया सर, अपना एक वेबसाइट बना लिया, और हमको एडमिशन की डेट बोलनी है, रिजल्ट अनाउंस करना है, जो भी अनाउंस करना है, हम वो सारा इंफॉर्मेशन कहां पर रख रहे हैं, अपने वेबसाइट में। So the moment you put the information of your website, the information can be viewed or can reach to all the audience or all the stakeholders which are across the world. कहीं भी बैठा हो उसको वो इंफॉर्मेशन सर मिल जाएगा। तो पहला स्टेप ये होता है सर कि स्टैटिक इंफॉर्मेशन को क्या करिए, आप पब्लिश करने का कोई मैकेनिज्म बनाइए, जैसे वेबसाइट बना लीजिए। तो ये भी ई गवर्नेंस का पहला स्टेप है। तो बोले अच्छा, ये ई गवर्नेंस का पहला स्टेप है, अभी फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अब दूसरा क्या करेंगे सर, अब दूसरा सर थोड़ा सा ये कीजिए कि उसको, मैंने कहने का मतलब थोड़ा सा
मोर रिस्पॉन्सिव या इंटरेक्टिव बनाइए। कि पहले तो आप क्या करते थे, सिर्फ आपने बोल दिया कि एडमिशन इतने तारीख को होंगे, फॉर्म्स आपको यहाँ पर मिलेगा, नहीं, अब क्या कीजिए, दूसरे स्टेप में ऑनलाइन फॉर्म्स भी प्रोवाइड कर दीजिए सर। ये नेक्स्ट स्टेप है। देखिए मान लीजिए हम एडमिशन के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने बोला 13 तारीख से एडमिशन होंगे या फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप क्या किया, प्लीज क्लिक दिस लिंक टू ओपन द फॉर्म, वहीं पे फॉर्म भी ओपन हो जाए। तो फॉर्म भी ओपन हो गया, भर भी गया फॉर्म और उसने सबमिट भी कर दिया। तो ये दूसरा स्टेप है ई गवर्नेंस के इंप्लीमेंटेशन का, यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहले स्टेप में तो सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन दिया, दूसरे में क्या दिया, एक फैसिलिटी दी जिसके तहत वो क्या कर सकता है सर, फॉर्म भर सकता है। तीसरे स्टेप में उसको रिस्पॉन्सिव बनाइए, अपने सिस्टम को रिस्पॉन्सिव बनाइए। रिस्पॉन्सिव का मतलब अभी तक तो सिर्फ फॉर्म भरने की फैसिलिटी थी, अब हम अपने फॉर्म का स्टेटस देखना चाहते हैं। तो क्या है, हमारा फॉर्म कहाँ है, पहुंचा, अभी किस स्टेज में है, नहीं है, क्या है। से फॉर एग्जाम्पल कि हमने अभी छुट्टी के लिए अप्लाई किया, अभी सब क्या करते हैं हम लोग, लीव के लिए अप्लाई करते हैं, तो अभी एक सीएल का एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं। नहीं, अगर आप ई गवर्नेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिस्टम में जाएंगे, देखेंगे लीव, अप्लाई फॉर लीव, एक एप्लीकेशन आ गया, उसमें नाम पता भर दिया, ओके कर दिया। जैसे ही आपने सेंड किया, आपका एप्लीकेशन प्रिंसिपल साहब के पास पहुंच जाएगा। प्रिंसिपल साहब या वाइस चांसलर साहब जो भी उसको सैंक्शन करते हो, उन्होंने सैंक्शन किया तो सैंक्शन लिख जाएगा, नहीं सैंक्शन किया तो नहीं लिख जाएगा। और आप कहीं भी बैठे हो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, वेदर योर लीव हैज बीन सैंक्शन और नॉट सैंक्शन। तो हम अब बता रहे हैं, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। तो आपने स्टेप बाय स्टेप किया। पहला स्टेप क्या था सर, सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, वन वे कम्युनिकेशन था। दूसरा क्या किया आपने कि नहीं, फॉर्म भरने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, तो टू वे कम्युनिकेशन अभी हुआ, लेकिन फुल्ली नहीं था अभी, ठीक है, एक साइड से आप इंफॉर्मेशन आ रहा है, दूसरा भर दिया फॉर्म, सबमिट हो गया। तीसरा अब रिस्पॉन्सिवनेस है, रिस्पॉन्सिव हम अब देखना चाह रहे हैं कि मेरा स्टेटस क्या है, मैंने पूछा और सिस्टम हमको बता रहा है कि योर एप्लीकेशन अभी जो है इज अंडर प्रोसेस, या वाइस चांसलर आपके पास है या प्रिंसिपल के पास है, जो भी स्टेटस है उसका आपको मिल रहा है। तो ये धीरे धीरे तब 3 स्टेप होते हैं। तो पहले हम सबसे पहले अपने स्टैटिक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं, दूसरा कुछ ट्रांजेक्शंस करते हैं और तीसरा सिस्टम को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं सर। अच्छी बात है, ये तो हो गया सर। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग एन इंटीग्रेटिंग सिस्टम व्हिच इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग ऑल मेजर एक्टिविटीज लाइक ऑनलाइन फाइल प्रोसेसिंग, ट्रैकिंग ऑनलाइन एनओसी, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स, ई परचेज, बहुत सारी चीजें जहां पर हम लोग इसको कर सकते हैं। एन एक्सक्लूसिव स्टूडेंट पोर्टल हम बना सकते हैं स्टूडेंट के लिए, इसी तरह से एम्प्लॉय के लिए बना सकते हैं। जो स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है वो स्टूडेंट वहां पे काम कर सकता है, जो एम्प्लॉय को जरूरत पड़ती है। अशोक जी कुछ बोल, अच्छा, मल्टीपल चैनल टू एक्सेस वेरियस सर्विस फ्रॉम यूनिवर्सिटी। खैर, तो यही बात सर हम लोग कर रहे थे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो स्टार्ट कहां से करेंगे, अब फेज्ड इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए सर। जहां पर आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इंफॉर्मेशन शेयरिंग थ्रू वेबसाइट, इंटरेक्टिव बनाएंगे अपने सिस्टम को। इंटरेक्टिव का मतलब जैसे लड़का फॉर्म भर सके, उसका फॉर्म सबमिट हो गया, और ट्रांजेक्शनल बनाएंगे। ट्रांजेक्शनल का मतलब है कि जहां बोथ वे कम्युनिकेशन हो सके, रिस्पॉन्सिव हो सके। रिस्पॉन्सिव का मतलब मैंने बताया कि लड़का अपना ट्रैक भी कर सके, सिर्फ सबमिट ना कर सके इन्फॉर्मेशन, लेकिन सिस्टम से पूछ सके कि मेरे एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। सो दिस इज नोन एज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन टू ई गवर्नेंस। तो कैसे करेंगे सर, ए फेज्ड इंप्लीमेंटेशन विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव कैन बी अडॉप्टेड। फेज्ड का मतलब है सबसे पहले आप स्टैटिक वेबसाइट बनाइए, फिर थोड़ा सा फैसिलिटी प्रोवाइड करिए कि लोग उससे आप इंटरेक्ट कर सके, और फिर उसको बोथ वे ट्रांजेक्शन यानी ट्रांजेक्शनल वेबसाइट बना दीजिए, ट्रांजेक्शनल सिस्टम बना दीजिए। तो ये आपका फेज है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं सर, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, हमने अब डिसाइड कर लिया कि इंप्लीमेंट भी करना है। अब क्या तरीका है मेरे पास, आप बता रहे थे कि 2 तरीके हो सकते हैं इंप्लीमेंट करने के। ई गवर्नेंस सिस्टम इंप्लीमेंट करना है तो चाहे तो एक आप इन हाउस डेवलपमेंट कीजिए सिस्टम का। इन हाउस डेवलपमेंट का मतलब सारे सिस्टम के लिए जो आपको बनाना है, ई गवर्नेंस अप्लाई करना है, तो आप अपना सिस्टम खरीदिए, सर्वर खरीदिए, अपना एम्प्लॉय रखिए और खुद से डेवलप करवाइए सिस्टम जो आपके रिक्वायरमेंट्स को सूट करता हो, है ना। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 प्रोग्रामर रख लिया, अब आप सैलरी कैसे प्रोसेस करते हैं बता दीजिए, वो पूरा सैलरी के लिए सिस्टम बना देगा, अब ऑटोमेट हो गया। मार्क्स कैसे, रिजल्ट कैसे प्रोसेस करते हैं वो बता दीजिए, तो पूरा रिजल्ट प्रोसेसिंग उसने बना दिया। टेस्ट कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे रिजल्ट आते हैं, कहने का मतलब जो जो आप प्रोसेस बताएंगे उन सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देगा वो आपका प्रोग्रामर, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इस तरह से अगर आप डेवलप करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सर इन हाउस डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं सर, इन हाउस डेवलपमेंट। तो ठीक है सर, इन हाउस डेवलपमेंट या इसी को टेलर मेड सिस्टम भी बोलते हैं। टेलर मेड का मतलब मेरे जरूरत के मुताबिक सिस्टम बनाया गया है। तो टेलर मेड सिस्टम या इन हाउस डेवलपमेंट का फायदा ये होता है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है सर। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब जैसे ही
एक्सेप्टेबिलिटी बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई नया सिस्टम आप अपने यूनिवर्सिटी में या अपने कॉलेज में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि शुरू में उसकी मुखालफत होती है। द पीपुल अपोज एनी न्यू चेंजेस इन द प्रोसेस। कोई भी नया चेंज आप करेंगे तो उसकी शुरू में मुखालफत होगी। ये ह्यूमन नेचर है सर। हाँ, बाद में उसको पता चलता है नहीं नहीं, ये तो हम बेकार की मुखालफत कर रहे थे, ये तो बहुत काम की चीज है, ये तो बहुत फायदे की चीज है। बाद में उसको एक्सेप्ट करता है आदमी, लेकिन इट टेक्स टाइम, लेकिन शुरू में मुखालफत होगा। तो यहां पर क्या होता है सर, अगर आप इन हाउस डेवलप कर रहे हैं तो जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें आपके सारे एम्प्लॉय इन्वॉल्व हैं, उनके मुताबिक बनाया गया है, उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया गया है। दे हैव बीन ट्रेन्ड कि भाई ये तो आपकी आसानी के लिए बनाया जा रहा है, देखिए आपका काम आसान हो जाएगा, तो वो सब समझ गए। तो सिस्टम को एक्सेप्ट करना उनके लिए ज्यादा आसान होता है, इसका रेजिस्टेंस नहीं होगा इस सिस्टम को। इसको बोलेगा नहीं नहीं ठीक है, ये हमारे लिए बनाया गया है, हमारे से पूछ के बनाया गया है, जैसे हम काम करते हैं मैनुअल उसी को कंप्यूटराइज कर दिया गया है, तो हमको इसमें काम सीखने में कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस फ्रॉम यूजर बहुत कम होगा, यानी टेक्नोलॉजी को आसानी से लोग अडॉप्ट कर लेंगे, और ये उसके मुताबिक बनाया हुआ है तो इसलिए अडॉप्ट कर लिया, काम शुरू हो गया आपका। बोलिए ठीक है, ये तो पहला तरीका हो। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका है सर, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरी सिस्टम्स। बहुत से प्रोप्राइटरी सिस्टम्स होते हैं जिसको, यानी कहने का मतलब है कि रेडीमेड सिस्टम है वो। तो रेडीमेड सिस्टम का मतलब है कि आपको रिजल्ट प्रोसेसिंग सिस्टम तो मार्केट में एक बना बनाया मिलता है सिस्टम, उसको खरीद के ले आइए और इंप्लीमेंट कीजिए। उस केस में सर आपको दिक्कत होगी, क्या जो रेडीमेड सिस्टम है वो आपके जरूरत के मुताबिक नहीं बनाया गया, वो तो एक जनरल चीजों को समझ के बना दिया गया है। हाँ, अब आपके यहाँ जब आएगा तो उसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। कस्टमाइजेशन का मतलब चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, तो उसको चेंजेस करने पड़ते हैं और चेंजेस करके तब डिप्लॉय करना पड़ता है। अच्छा, अब यूजर को कुछ मालूम नहीं, एक नए सिस्टम ले आए, तो नए सिस्टम लाए हैं तो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, तो उस केस में रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय भी होगा, जल्दी लोग अडॉप्ट करने को तैयार नहीं होंगे। प्लस आपको लॉट ऑफ ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि भाई देखिए ये नया सिस्टम हम लाए हैं, इसमें ऐसे ऐसे काम करना है। सो ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर विद द प्रोप्राइटरी सिस्टम, या जो आप कहते हैं कि ऑन द सेल्फ प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, या बाहर से खरीद के ले आए जिसको, है ना, उस सिस्टम के साथ। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि टेलर मेड का मतलब इन हाउस डेवलप करवाइए, अपने एम्प्लॉय के थ्रू डेवलप करवाइए। जैसे कपड़ा सिलवाते हैं सर, कोट पैंट सिलवाया, एक तो है रेडीमेड ले लिया, तो रेडीमेड में कभी कभी ठीक भी बैठ गया, कभी ठीक नहीं बैठा, काहे वो तो एक जनरल ट्रेंड से बना दिया जाता है कपड़ा, उसको फिर अल्टर करवाना पड़ता है, अपने हिसाब से बनवाइए। लेकिन आप टेलर से नाप देके बनवाएंगे तो बिल्कुल आपका नाप लेकर के सही बनाएगा, वो कपड़ा बिल्कुल ठीक होगा। यही हालत यहाँ पर भी है। तो दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक रेडीमेड प्रोडक्ट है, चाहे तो उसको खरीद के आप इंप्लीमेंट कर लीजिए, लेकिन उस केस में बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, उसको चेंज भी पड़ता है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, पैसा भी ज्यादा लगता है। लेकिन इन हाउस अगर कराएंगे तो इन हाउस आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया गया है, आपके एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करके बनाया गया है, तो वहां रेजिस्टेंस कम होगा, लोग टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, ट्रेनिंग भी कम देना पड़ेगा, और ये आसानियां होंगी। सो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द सिस्टम। अच्छी बात है। यहां तक सर समझ में बात आई किसी, या नहीं समझ में आ रही तो बताएं सर, फिर हम आगे बात करें इसमें। यहां तक क्लियर है सर? यस सर। अच्छा जी, अख्तर साहब यू हैव रेज्ड द हैंड, कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? अख्तर साहब बोलिए, इफ यू वांट टू से समथिंग बिकॉज यू हैव रेज्ड योर हैंड, या गलती से हो गया था? अच्छा सर, अब हम लोग आगे आते हैं। तो फिर देखिए सर, आप बोलिए ठीक है ये सब तो हो गया, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने क्या किया है, कुछ प्रोडक्ट्स बना दिए हैं जिसका आप, रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल आप अपनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट है सर सामर्थ नाम है उसका, ये इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रोडक्ट है। तो सामर्थ के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना है सर, आपको एक गवर्नमेंट को लेटर लिख देना है कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को, या एक सामर्थ जो ईआरपी उसको ऑटोमेट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें लॉगिन पासवर्ड दें। तो सामर्थ एक गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहां पर वेबसाइट में उनका ऑलरेडी है, आपको एक मिल जाएगा पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, उसका इस्तेमाल करके आप अपना काम कर सकते हैं। कौन कौन सा काम कर सकते हैं सर उसमें, कौन कौन सा मॉड्यूल है? तो देखिए अकाउंट्स का मॉड्यूल है उसमें, तो पूरा अकाउंट्स का काम जो आप करते हैं, बिल की ट्रैकिंग, फीस मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, बजट एंड अकाउंट, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स, ये सारा काम सर इसमें हो सकता है। दूसरा मॉड्यूल है सर एकेडमिक्स का, ये सामर्थ कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपके कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं, जैसे बीएससी प्रोग्राम चलता है, एमएससी प्रोग्राम चलता है, कॉमर्स प्रोग्राम चलता है, जो भी चलता है उनकी पूरी डिटेल्स लिख सकते हैं, एकेडमिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, इवैल्यूएशन एंड ग्रेडिंग कर सकते हैं, ये सारा काम आप कर सकते हैं। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो काम होते हैं, जैसे कंटेंट फेडरेशन कर सकते हैं, एफिलिएशन मैनेजमेंट है, एंडोमेंट पोर्टल है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। इसी तरह से सर स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नेंस, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं इसमें, 35-40 से ज्यादा मॉड्यूल्स हैं।
तो इन 40 से ज्यादा मॉड्यूल को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपना काम ऑटोमेट कर सकते हैं, देयर बाई मेकिंग द होल सिस्टम मोर इजी टू यूज, ट्रांसपेरेंट एंड इफिशिएंट। कहने का मतलब ई गवर्नेंस आप ई गवर्नेंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या इसको अडॉप्ट करके? सामर्थ्य के थ्रू भी कर सकते हैं। सामर्थ्य एक प्रोजेक्ट है। बोलिए ठीक है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया ये सब काम। अगर पढ़ने पढ़ाने वाला टीचिंग एंड लर्निंग, तो हाँ टीचिंग एंड लर्निंग में भी बहुत सारी चीजें हैं सर। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, उसमें स्वयं इनिशिएटिव का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो स्वयं एक इनिशिएटिव है जहां पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं सर, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इन कोर्सेज को लड़का ले सकता है, अपने आप को एनरोल कर सकता है, वहां पर एग्जाम दे सकता है, उस कोर्स को पास भी कर सकता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। इसी तरह से स्पोकन ट्यूटोरियल है, वर्चुअल लैब है। आप केमिस्ट्री का कोई लैब करना चाहते हैं, फिजिक्स का लैब करना चाहते हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं सर, आप लैब कर सकते हैं। पेंडुलम जैसे। सर एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए सत्येंद्र। सर ये स्वयं जो है सर, क्या अपने कॉलेजेस में स्टार्ट कर सकते हैं क्या, और कैसे start करते हैं? अभी बता रहे हैं सर, हम स्वयं पे भी आते हैं सर, स्वयं पे भी आता हूँ मैं, दिखाऊंगा सर, अभी दिखाओ एक मिनट, इसको डिस्कस करने के बाद मैं वहां आ रहा हूँ। उसके बाद सर वर्चुअल लैब की बात कर रहे थे हम लोग। तो वर्चुअल लैब का मतलब जैसे कि आप वो पेंडुलम फिजिक्स में जानते होंगे सर, पेंडुलम, तो आपको कहीं पेंडुलम चाहिए नहीं, वो वर्चुअली भी कर सकते हैं। टाइट्रेशन केमिस्ट्री में करते हैं, वो टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल भी आप कंप्यूटर में बैठे बैठे कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रॉग का डिसेक्शन करते हैं बायोलॉजी में, तो कोई चाकू की जरूरत नहीं है, जिंदा मेढक पकड़ने की जरूरत नहीं, उसको चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं, वो सारा काम आप कंप्यूटर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो वर्चुअल लैब की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तो ये टीचिंग एंड लर्निंग में आईसीटी का इस्तेमाल है, जिसका इस्तेमाल करके आप टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। इसी तरह से सर आपके लाइब्रेरी को अगर आपको मैनेज करना है, तो बहुत सी यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी में अपनी लाइब्रेरीज होती हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, तो उसमें कितनी थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर देयर। तो कौन कौन सी किताबें हैं, कब आई नहीं आई, कितना परचेज हुआ, क्या हुआ, कौन सी किताब किसको इशू हुई नहीं हुई, ये सारा काम लाइब्रेरी मैनेजमेंट का जो लाइब्रेरियन है जानते हैं, ये सब आप कर सकते हैं सर यहाँ पर। अच्छा सर, इतना जानने के बाद अच्छा ये होता क्या है सर, बेसिकली हमने आपको बताया कि ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी ठीक हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पब्लिक डोमेन में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, करप्शन कम हो जाता है। करप्शन का मतलब कम हो जाता है, इसमें आप जानते हैं सारी चीज ट्रांसपेरेंसी होगी तो करप्शन कम हो जाएगा, एंड सो। खैर, हमने आपसे बात किया सर, दो चीजें आपको जल्दी से मैं दिखा देता हूं। एक तो मैं दिखाता हूं आपको सामर्थ्य, मैंने अभी बात किया था ना कि कैसा सामर्थ्य दिखता है, तो जल्दी से हम लोग सब देख लेते हैं सामर्थ्य, उसके बाद फिर आगे आपसे डिस्कशन कर लेंगे। हमारा स्क्रीन देख पा रहे हैं सर, गूगल का एक स्क्रीन दिख रहा होगा, दिख रहा सर ये? यस सर, यस सर। ये सामर्थ्य का Yes, ये आप सामर्थ्य का डैशबोर्ड देख पा रहे हो सर, ये सामर्थ्य का देखिए एक डैशबोर्ड है, अगर आप देख पा रहे हो तो देख रहे हैं सर ये, ठीक है। तो अभी देखिए सर, यहाँ मैं अभी चेयरमैन के इस पे हूं, तो चेयर जब भी कोई एम्प्लॉय लीव का एप्लीकेशन देगा, देख पा रहे हैं सर, लीव एप्लीकेशन दिख पा रहा होगा आपको सर, है ना, लीव एप्लीकेशन फॉर सैंक्शन, देख पा रहे हैं सर? बताइए सर, स्क्रीन विजिबल है? यस सर, दिख रहा है। अब देखिए सर, यहाँ पर 1 Yes, 2 3 4 6 लोगों ने, छठा आदमी कौन है देखिए, सफीकुल आबेदीन, छठा अगर पढ़ पा रहे हैं नाम देखिएगा सबसे लास्ट में, इन्होंने सीएल के लिए अप्लाई किया है, 2 से 3 एक दिन का सीएल अप्लाई किया है। बोले अच्छा, देखिए सर यहाँ लिखा हुआ छठा देखिएगा सर, ये 6 वाला, तो 6 वाले में हमने देखा कि क्या है, देखते हैं। देखिए इनके एप्लीकेशन को हमने देखा तो देखा अच्छा ये सफीकुल आबेदीन साहब ये है, ये इन्होंने एक दिन के सीएल का अप्लाई किया है, अर्जेंट वर्क में जाना है। हाँ, अब देखिए सर यहाँ पर सबसे नीचे देखिएगा लिखा हुआ सैंक्शन चेयरमैन, क्या लिखा हुआ है, स्टेटस पेंडिंग, यानी ये देख सकते हैं कि अच्छा ये चेयरमैन साहब के पास है, इन्होंने अभी सैंक्शन नहीं किया है। गौर कर रहे हैं सर, देख पा रहे हैं यहाँ पर? यस सर, अच्छा, पेंडिंग है। तो हम अब क्या किए सर, हम ठीक है चेयरमैन पे गए और हमने जा करके सर इनको किया सैंक्शन कर दिया। क्या कर दिया सर, इनका छुट्टी सैंक्शन कर दिया, सबमिट। जैसे ही सैंक्शन करेंगे उस एम्प्लॉय को मेल चला जाएगा कि चेयरमैन साहब ने आपकी छुट्टी क्या कर दी है, सैंक्शन कर दी है। और यहां से देखिएगा सर ये छुट्टी गायब हो जाएगा। यहां से भी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क स्पीड सर, कभी कभी सिस्टम थोड़ा सा। अब देखिए सर ये लीव अप्रूवल, ये सैंक्शन हो गया, देखिए सर लिखा हुआ है स्टेटस अपडेटेड, मेल चला गया एम्प्लॉय को। और यहाँ देखिए सर नीचे, अब देखिए यहाँ चेयरमैन, देखिए सर पहले क्या आ रहा था, चेयरमैन पेंडिंग आ रहा था, यहाँ पर आप देख रहे थे ये वाला पेंडिंग दिखा रहा था कि नहीं, अब क्या दिखा रहा सर, स्टेटस क्या हो गया अब इसका, देख पा रहे हैं सर, ये सैंक्शन का स्टेटस पहले क्या दिखा रहा था, पेंडिंग, अब क्या हो गया सर, पेंडिंग, अब डन हो गया। कहने का मतलब अब हो गया, कहने का मतलब प्रोसेस इतना ही आसान होता है, एम्प्लॉय को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, उसने सिस्टम में भर दिया, चेयरमैन ने देख लिया, चेयरमैन ने सैंक्शन कर दिया, सैंक्शन हो गया, खत्म मामला। तो द होल प्रोसेस बिकम्स इजियर। अच्छा दूसरा फिर मैं आ जाता हूँ जरा अपने डैशबोर्ड पे, आपको दिखाता हूँ। उस वक्त 6 लोग थे यहाँ पर, अब देखिए सर 5 ही लोग बचे होंगे, छठे का काम हो गया। मेरी बात समझ रहे सर, है ना?
तो फिर अब चेयरमैन देख लेगा इसको देना है नहीं देना है छुट्टी, यहाँ पर जाके अपना कर देगा, ओके कर देगा। मेरी बात समझ गए सर यहाँ तक कि नहीं समझ पाए, सो बताइए। यस सर। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो अब रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट आपको दिखाते हैं, जैसे कि कहीं कहीं तो चेयरमैन खुद सैंक्शन कर सकता था, कहीं आप रिकमेंडेशन कर पाते हैं। तो रिकमेंडेशन का मतलब है कि आप सिर्फ रिकमेंड करेंगे, फिर डीन जाएगा, डीन के पास हो सकता है वाइस चांसलर उसको सैंक्शन करता हो तो वाइस चांसलर तक जाएगी वो चीजें। तो ये तो खैर सामर्थ्य है, इस तरह से बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। हमने आपको लीव मॉड्यूल दिखाया, अब एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्वेंट्री है, गवर्नेंस है, लॉट ऑफ मॉड्यूल्स आ गया। तो चलिए वो सब चीजें बाद में हम लोग देखेंगे। अब दूसरा आपको मैं स्वयं दिखा देता हूँ जल्दी से, स्वयं की हम लोग बात कर रहे थे। तो स्वयं में देखिएगा सर, गूगल पे हमने स्वयं लिखा, ये पहला वाला स्वयं आ गया। अब स्वयं में सर एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये, जहां पर हर सेमेस्टर में, इनका सेमेस्टर चलता है सर जनवरी टू जून और दूसरा जुलाई टू दिसंबर। तो हर सेमेस्टर के बिगिनिंग में ये लगभग 800-900 कोर्सेज लॉन्च करते हैं सर हर सेमेस्टर में नया। और लड़का उसमें से कोई भी कोर्स चाहे तो उसमें इनरोल कर सकता है, उस कोर्स को कर सकता है, और अगर सक्सेसफुली पास कर गया तो उसके कॉलेज के ग्रेड शीट में, जो ग्रेड शीट उसको मिलेगी सेमेस्टर के एंड में, उसमें वो कोर्स भी रिफ्लेक्ट होगा कि इसने स्वयं में ये कोर्स किया है। ठीक है सर। अब देखिए सर स्वयं के हम दिखा देते हैं आपको, ये सारे कोर्सेज हैं, देखिए सर ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पर, इतने सारे कोर्सेज, ये सब जो कोर्सेज हैं सब कोर्सेज के नाम है, बहुत सारे कोर्सेज अल्फाबेटिकल है, तो आप देखते जाइएगा यहाँ सर 600-700 कोर्सेज होते हैं सर यहाँ, सो मेनी कोर्सेज आप देख। आप किसी को भी खोल के देख सकते हैं, मैं आपको एक आध कोर्स दिखा देता हूँ जैसे समझने के लिए। मान लीजिए कि किसी एक को दिखा देता हूँ सर, मान लीजिए AI इन मार्केटिंग, देख रहे हैं सर ये कोर्स है AI इन मार्केटिंग। स्क्रीन विजिबल है सर, बताइएगा हाँ या ना में थोड़ा सा। AI इन मार्केटिंग, यस सर विजुअल है। इसको क्लिक कर दिया, जैसे मान लीजिए हमने क्लिक किया तो देखिए AI इन मार्केटिंग का कोर्स खुल के आ जाएगा सर। तो पहले देखिए उसका इंट्रोडक्शन है यहाँ पर, आप चाहें तो इसमें इनरोल हो सकते हैं, और आप कोई भी लड़का, इसमें सब ओपन फॉर ऑल होता है सर। लेकिन अगर आप एग्जाम देना चाहें तो स्टूडेंट अगर एग्जाम देना चाहे और सर्टिफिकेट लेना चाहे तो भी मिल जाएगा, और सिर्फ सीखना चाहे तो सीख के छोड़ भी सकता है, एग्जाम नहीं भी दे सकता, कोई इशू नहीं। थोड़ा सा नेटवर्क स्पीड है सर, देखिए आ गया सर। ये देखिए सर जरा सा, ये कोर्स है AI इन मार्केटिंग का, ये प्रोफेसर जिल्लुर रहमान का कोर्स है, ये IIT रुड़की में प्रोफेसर हैं। यहाँ देखिए सर, दिखाना चाह रहे हैं आपको क्या, लर्नर्स, कितने लर्नर अब तक इनरोल्ड है सर इसमें, देख पा रहे हैं सर 31,622 लड़का इसमें इनरोल्ड है। तो एक्सेस बढ़ जाता है सर, हम अपने क्लास में कितना 100 लड़के को अकोमोडेट कर पाएंगे, 150 को, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्लास में। लेकिन यहाँ देखिए एक क्लास में कितने लड़कों को अकोमोडेट किया हुआ टेक्नोलॉजी के थ्रू, 31,622। ये लैक्स तक भी जा सकता है सर, कितने भी लड़के हो सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स भी बोलते हैं। तो आप देखिए सर 31,000 लड़कों को एक साथ ही पढ़ा रहे हैं ये कोर्स। ये पूरा दिया हुआ सर, वीक 1 में हम ये कवर करेंगे, 2 में ये करेंगे, 12 वीक का एक सेमेस्टर का पूरा कोर्स है। कौन सी किताबें हैं, इंस्ट्रक्टर के बारे में लिखा हुआ है, और सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। सर्टिफिकेट का मतलब इंटरनल एग्जाम इतने नंबर का होगा, एक्सटर्नल एग्जाम इतने नंबर का होगा, जब पास करेंगे तो आपको इतना क्रेडिट मिलेगा, पूरी बातें सर लिखी होती है। ठीक है सर। आप स्वयं के बारे में कोई सवाल हमसे पूछ रहे थे, कौन सा आपके जरा बताइएगा। सत्येंद्र जी पूछ रहे थे, बोलिए सत्येंद्र जी क्या सवाल था आपका। हाँ सर ठीक है सर, मतलब इसका मतलब कि कॉलेज नहीं खोल सकता, जैसे मान लीजिए कॉलेज के हम टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो क्या मैं स्वयं में इनरोल हो सकता हूँ? Anybody can enroll in this course, anybody, it is open for all होता है, MOOCs कहलाता है सर, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। मैसिव का मतलब आपने देख लिया कि मोर देन 30,000 40,000 स्टूडेंट्स आर इनरोल। ओपन फॉर ऑल है, ओपन फॉर ऑल का मतलब इसमें 10th पास 12th पास फेल लड़का जो भी हो, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि आपको BA होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, ये सब नहीं, ओपन फॉर ऑल है। कोई भी आदमी सीखने के इस कोर्स को कर सकता है, नॉट नेसेसरली स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, काम करने वाले लोग हो सकते हैं, कोई भी लोग इसको कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है सर। देखिए ना बहुत सारे कोर्स। ये मैं पूछ रहा था सर, सपोज जैसे कॉलेज का मैं प्रोफेसर हूँ, तो क्या मैं अगर अपना पोर्टल खोल सकता हूँ, ऐसा कुछ है क्या? ठीक, आप अपना कोर्स इसमें डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, ये पूछ रहे हैं ना, ये पूछ रहे हैं। हाँ कर सकते हैं सर। मैं पहले बोल रहा हूँ करने की, पहले बात कर रहा हूँ इनरोल करने की। इनरोल करने का मतलब कोर्स को करने का, तो टीचर भी इस कोर्स को सीखने के लिए पढ़ सकता है। जैसे नया कोर्स है, हम भी सीखना है तो हम लोग पढ़ के अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, तो इसको कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है, घर की गृहणियां कर सकती हैं, काम करने वाले लोग कर सकते हैं। हाँ अब सवाल आता है कि सर हम भी ऐसे ही अपना कोर्स बनाना चाहते हैं, तो आप भी बना सकते हैं सर। तो उसका एक प्रोसेस है, वो कोर्स आप भी बना सकते हैं। उसके लिए देखिए सर यहाँ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स लिखे हुए हैं, देख पा रहे हैं सर स्वयं के फाइल पे नेशनल कोऑर्डिनेटर। ये देखिए AICT है, CEC है, IGNOU, ये सब नेशनल कोऑर्डिनेटर है।
इनमें से किसी एक के पास आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स बना रहे हैं जी, अमनप्रीत कौर जी, आपका माइक्रोफोन अमनप्रीत कौर जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आपका गलती से ये हो गया है, ठीक, म्यूट करिए। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे सर यहाँ पर कि अपना टेक्नोलॉजी से, मान लीजिए आप सब किस बताइए, कौन से कोर्स के बताइए। डॉक्टर अमनप्रीत प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। अमनप्रीत कौर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, सतेंद्र जी आप किस सब्जेक्ट के बताइए सर। मैं बॉटनी से हूँ सर, बॉटनी से है, ठीक है। तो बॉटनी का मतलब हुआ, आप कोर्स अगर ग्रेजुएशन का बनाना चाहते हैं तब तो आपको सीसी में अप्लाई करना पड़ेगा, मास्टर का बनाना चाहते हैं तब यूजीसी में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो ये देखिए यूजीसी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, अलग अलग कोर्स हैंडल करते हैं। बीटेक का बनाना चाहते हैं तो एनपीटीएल में करना पड़ेगा, स्कूल का बनाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में। तो यही इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना कोर्स जो भी बनाना चाहते हैं इनके पास अपना प्रपोजल भेज दीजिए, ये आपके प्रपोजल को देखेंगे और इवेलुएट करेंगे। बोलेंगे प्रपोजल कहाँ से भेजेंगे सर, तो उसके लिए एक स्वयं लिखिएगा गूगल पे, स्वयं EOI लिखिएगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए ये पहला पोर्टल जो मिलेगा, ये पोर्टल है, देखिए सर, प्रपोजल फॉर कोर्स डेवलपमेंट लिखा हुआ है, देख रहे हैं स्वयं में। बस ये प्रपोजल आ गया, यहीं से आप देख लीजिए, स्कोप ऑफ वर्क लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, गाइडलाइन लिखा हुआ है, और ये सबमिशन ऑफ प्रपोजल भी है। यहीं पर आप देख लीजिए कि कौन सा कोर्स, यूजी कोर्स, बॉटनी, जूलॉजी जो भी बनाना चाहते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ से पूरा ले सकते हैं। इसके अलावा भी कोई कोर्स बनाना चाहते हैं जो यहाँ लिखा हुआ वो भी आप कर सकते हैं। और करने के बाद देखिए सर ये लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिटिंग द प्रपोजल, इसको क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म खुल के आ गया, आप प्रपोजल के लिए अपना प्रपोजल यहाँ से भर के जमा कर सकते हैं। डॉक्टर अमनप्रीत कौर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मजर आ रही है, मजर आप हैं? अमनप्रीत कौर अपने आप को म्यूट करके भाई ऑन करके कहीं भी पूरा क्लास को डिस्टर्ब कर। खैर सर इसमें कुछ इसमें फी वगैरह कुछ है क्या सर, मतलब इसको प्रपोजल को देने के लिए वी हैव टू सेंड सम मनी फॉर रजिस्ट्रेशन? हाँ जी, आप अगर इस कोर्स को डेवलप करेंगे सर, एक कोर्स को डेवलप करने का सरकार आपको 13.5 लाख रुपए देती है। ये सीधा करके आई थिंक द होस्ट विल जो होस्ट होंगे वो सर एक सेमेस्टर का कोर्स होगा सर, एक सेमेस्टर का कोर्स होगा। दिखा देता हूँ, देखिए फाइनेंशियल लॉ में लिखा हुआ है यहाँ, ये मिनिस्ट्री का लेटर है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू कोर्स 4.5 लाख और 9 लाख, ये दोनों मिलकर 13.5 लाख रुपया आपको मिलेगा सर एक कोर्स बनाने का। मजहर आर यू देयर? मजहर जैदी है? ये अमनप्रीत का माइक्रोफोन जरा सा म्यूट कर दीजिए, ये डिस्टर्ब कर रही है क्लास। ठीक, हाँ चलिए सर, तो आप लोग समझ गए यहाँ तक सर। अब बताइए और कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो बताइए, हम लोग बात करते हैं। सतेंद्र जी आपके लिए क्लियर हो गया सवाल? कुछ और कुछ पूछना आपको बताइए। ओके सर, मतलब मैं वेबसाइट पे जाकर पहले देखता हूँ। हाँ, वेबसाइट ये वाला है, देखिएगा इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, इंट्रोडक्शन भी है, स्कोप ऑफ वर्क है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, गाइडलाइंस में सारी बातें लिखी हुई हैं, और सबमिशन ऑफ प्रपोजल है। तो इसको जाकर के एक्सप्लोर करिए और ये कर सकते। हम बता रहे हैं सर कि देखिए ई गवर्नेंस यही है कि आप प्रपोजल के लिए आपको कोई परफॉर्मा नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, सब ऑनलाइन यहीं से हो जाएगा। और जैसे सबमिट करेंगे आप, आपका प्रपोजल उस नेशनल कोऑर्डिनेटर को सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको स्टेटस चेक करते रहिए कि आपका प्रपोजल कहाँ है, नहीं है। एक्सेप्ट होगा तो आपके पास लेटर आ जाएगा कि आपका एक्सेप्ट हो गया, यू स्टार्ट मेकिंग द कोर्स। आपके लिए फाइनेंसेज आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, सब चीजें, मैंने कहने का मतलब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आसान बना दी गई है आपके लिए। यही ई गवर्नेंस है सर। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है सर? यस सर, थैंक यू। आप किसी का सवाल हो तो एक एक करके सवाल पूछिए। आई एम नाउ ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। एक एक करके सर सवाल पूछिए। अख्तर जी आपके पास कोई सवाल है? अख्तर हुसैन साहब। नहीं सर, बहुत सिंपल वे में समझ में आ गया है सर। ठीक है सर, आजाद जी पूछिए, डॉक्टर आजाद ओझा जी। जी सर, एक्चुअली क्वेश्चन ये था सर, ये इसमें एलिजिबिलिटी 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना सर? यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का लिखा हुआ है। आपको क्या होना चाहिए? एप्लीकेंट शुड बी ए फैकल्टी मेंबर इन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होल्डिंग ए पीएचडी डिग्री हैविंग ए मिनिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। जी सर, सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है सर, है ना? जी और सर। ये गवर्नमेंट का पोर्टल है।
सर एक्सक्यूज मी सर, मैं डॉक्टर अंकिता अभिलाषी यूनिवर्सिटी से बात कर रही हूँ, हिमाचल प्रदेश। सर मुझे ये पूछना है कि इसमें पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप अपना पहले देख लीजिए पूरा। अब लास्ट वाला देखिए, सबमिशन ऑफ प्रपोजल है। सबमिशन ऑफ प्रपोजल का मतलब देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो एक फॉर्म खुल के आ जाएगा ना, उसमें आप अपना नाम पता ऐसा डालिएगा कि उसके बाद बोलेगा क्या प्रपोजल लिखिए, वो पूरा उसी के बाद आता जाएगा। जी जी जी। और सर कोर्सेज अगर करने हो तो उसके लिए हमें पहले रजिस्टर करना पड़ेगा या डायरेक्ट कर सकते हैं? करने के लिए कुछ नहीं करना। अगर आपको कोर्स सीखने के लिए करना है तो देखिए, मैं आपको दिखा दूं कहाँ पर था ये कोर्स वाला, ये यही था। हाँ, इसमें देखिए ऑल कोर्सेज में आपको जाना, दिखाता हूँ मैं आपको। जी सर। आपको ऑल कोर्सेज में जाइएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको ये पहला वाला कोर्स करना है, ठीक है ना? जी सर। इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा इनरोल या ज्वाइन करके, अभी दिखाते हैं। बस आपको देखिए आगे ना ज्वाइन बटन देख पा रहे हैं, ये ज्वाइन लाल वाला बटन देख पा रहे हैं, ज्वाइन बटन। यस सर। बस उसको क्लिक करेंगे, आपका नाम पता पूछेगा, आप इस कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। अब उसके बाद आपके पास मटेरियल, वीडियो जो भी होगा आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त तक 17,000 लोग इस कोर्स में ऑलरेडी क्या है, इनरोल्ड हैं। ठीक है मैम? अंकिता जी ठीक है? हेलो, कैन यू हियर मी? अंकिता जी सुन पा रही हैं? अंकिता जी सुन पा रही हैं? जी सर जी, थोड़ा सा। हेलो, बाकी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, यू आर ऑडिबल सर, यू आर ऑडिबल। आप ऐसे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं सर। और किसी का सवाल हो बताइए। कौन पूछना चाहता? ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, वेरी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन, थैंक यू सर। वेलकम मैम। सचिन शर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर सचिन। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। देव बरुआ, डू यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, एनीथिंग सर? और किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो बताइए, अदरवाइज विल टेक ए लीव एंड देन यू हैव अनदर सेशन फ्रॉम 3:30 ऑनवर्ड्स। बताएं सर। सर एक क्वेश्चन जी बताइए सर, सतेंद्र जी बताइए। जैसे कि सपोज मैं किसी कॉलेज में हूँ, बीएल मंडल यूनिवर्सिटी में हूँ मैं, तो अगर कॉलेज को, जैसे अभी मैं गया प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो उसमें बताया गया कि स्वयं में इनरोल है कि नहीं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था गवर्नर के ऑफिस में कि स्वयं में आपका कॉलेज इनरोल है कि नहीं, इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, तो सर एक पूरा प्रोसेस है। होता क्या है कि जो मैकेनिज्म हमने बताया आपको, बहुत आसान करके बताया। इसके लिए क्या होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी को पहले एक अडॉप्ट करना पड़ता है, या कॉलेज को, जो भी है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को अडॉप्ट करना पड़ता है क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम। क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम का मतलब होता है सर कि अगर कोई लड़का आपके स्कूल का या कॉलेज का स्वयं में कोर्स करता है और 4 क्रेडिट मान लीजिए उसने सक्सेसफुली अर्न कर लिया, तो सेमेस्टर के आखिर में जो आप ग्रेड शीट देते हैं उसको, उसमें ये कोर्स का भी जिक्र होना चाहिए कि दिस स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड दिस कोर्स ऑफ 4 क्रेडिट फ्रॉम स्वयं। अब जो है, अब वहां 4 क्रेडिट इसका हो गया। मान लीजिए अगर 100 क्रेडिट पे आप ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं और उसने 4-4 क्रेडिट के 5 कोर्स कर लिए स्वयं से 20 क्रेडिट, तो आपके यूनिवर्सिटी से सिर्फ वो 80 क्रेडिट का ही कोर्स करेगा। ये बात समझ रहे हैं? ये 20 क्रेडिट कोर्स मान होगा, लेकिन इसको करने के लिए आपके कॉलेज को पहले क्या करना पड़ता है, क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम को क्या करना पड़ेगा सर, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यही चीज कहलाती है कि हाँ, हमारा कॉलेज जो है क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम को इंप्लीमेंट कर चुका है और हम स्वयं के पोर्टल पे रजिस्टर हैं। ऐसा करने से आप स्वयं के पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएंगे, तो जब भी लड़का वहाँ स्वयं पे रजिस्ट्री करेगा तो आपके स्कूल या कॉलेज का नाम भी दिखाएगा वहाँ पर, ठीक है ना? ओके, तो पहले यूनिवर्सिटी पहले इनरोल करेगी। एग्जैक्टली प्रोसेस एक होता है आपके यूनिवर्सिटी को उसमें इनरोल करना। थैंक यू सर। Okay, participants, if you don't have any question, thank you very much for your patience listening, and hope you might have enjoyed the session, and we seek your permission to leave the session. Thank you. Thank you very much. थैंक यू Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir.